اے حسن جب میری وفات ہو جائے تو تم مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا اور نانا کے بچے ہوئے کافور سے مجھے حنوط کرنا۔ وہ جنت کا کافور ہے جسے جبریل امین لے کر آئے تھے، پھر مجھے چارپائی پر لٹا دینا اور چارپائی کا اگلا حصہ نہ پکڑنا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن ملجم حضرت علی کی بیعت کے لیے آیا تو آپ بڑی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر مولا علی نے فرمایا میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے صحیح جواب دینا۔ اس نے کہا میں صحیح جواب دوں گا۔ آپ نے فرمایا جب تو لڑکوں سے کھیلنے کے لیے جاتا تھا اور وہ تجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تو کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کتے چرانے والی عورت کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں یہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا جب تو جوان ہوا اور تیرا گزر ایک شخص سے ہوا تو اس نے تجھے گہری نظروں سے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ تو قوم سمود کے بدبخت ترین شخص سے بھی زیادہ بڑا بدبخت ہے؟ ابن ملجم نے کہا جی ہاں یہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے تیری ماں نے بتایا کہ وہ تیرے ساتھ حالت حیض میں حاملہ ہوئی تھی؟ ابن ملجم کچھ دیر کے لیے ہچکچایا، پھر کہا جی ہاں یہ درست ہے۔ آپ نے فرمایا کھڑا ہو، تو وہ کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرا قاتل یہودی کی مانند ہوگا بلکہ مکمل یہودی ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا دستور تھا کہ آپ جب بھی ابن ملجم کو دیکھتے تھے تو آپ یہ شعر پڑھتے تھے، میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم اس رات مسجد میں آیا اور رات مسجد میں بسر کی اور طلوع فجر امام کی آمد کا انتظار کرتا رہا۔ وہ ساری رات اس بدترین جرم کے ارتکاب کے متعلق سوچتا رہا۔ اس کی مدد کے لیے دو اور خارجی موجود تھے۔ امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھی، پھر آپ گلدستہ اذان پر آئے، اذان دی۔ آپ کی اذان کی صدا پورے کوفہ کے گھروں میں پہنچی، پھر آپ گلدستہ اذان سے نیچے اترے، پھر آپ نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کر دیا اور ہر سوئے فرد سے کہتے کہ خدا تجھ پر رحم کرے، اٹھو نماز پڑھو۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھتے رہے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے پاس آئے، وہ منہ کے بل لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص نیند سے بیدار ہو جا، اس طرح سے سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے، یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے۔ پھر مولا علی نے فرمایا اے ابن ملجم تو جو ارادہ لے کر آیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ آپ نے نماز میں طویل رکوع و سجود کیے۔ ادھر وہ ملعون تاریخ انسانیت کے بدترین جرم کے اقدام کے لیے اٹھے اور چلتے ہوئے اس ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، پھر سر کو اٹھایا، وہ لعین آگے بڑھا اور آپ کے سر اطہر پر تلوار کا وار کیا۔ اس لعین کی تلوار وہاں پڑی جہاں عمر بن عبد کی ضربت لگی تھی۔ امام علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گرے اور یہ کلمہ پڑھا بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ جامع مسجد کی بنیادیں ہل گئی، آسمان پر ملائکہ کی چیخیں بلند ہوئی اور سیاہ آندھی چلی۔ جبریل امین نے زمین و آسمان کے درمیان آواز دی جسے ہر بیدار انسان نے اپنے کانوں سے سنا، خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے، خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے۔
गए। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के इब्ने हम शहीद हो गए और कायनात के सबसे बड़े बदबख्त ने उन्हें शहीद कर दिया। जब उम्मे कुलसूम ने ये सदा सुनी तो अपने चेहरे और रुखसार को पीटने लगी और रो रो कर कहा, हसनैन करीमैन घर से बाहर आए। उस वक्त लोग नोहा कर रहे थे और कह रहे थे, हाय इमाम, हाय अमीर अल मोमिनीन, खुदा की कसम आबिद व मुजाहिद इमाम मारा गया, वो मारा गया जिसने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था। जब हसनैन करीमैन ने लोगों के ये नोहे सुने तो उन्होंने रो रो कर कहा, हाय बाबा जान, हाय काश कि हम पर पहले मौत आ गई होती और ये दिन न देखते। जब हसनैन मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अबू जौदा और कुछ मुसलमान कोशिश कर रहे हैं कि इमाम को मेहराब में खड़ा करें ताकि इमाम जमात करा सके। आप में उठने की ताकत नहीं थी, इसलिए आप सबसे पीछे हो गए और उनकी जगह इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इशारों से नमाज पढ़ी। इस असना में अपने चेहरे और रीश तर से खून पहुँचते रहे। नमाज पढ़ने के बाद इमाम हसन ने ये निदा दी, है मेरी कमर टूट गई, आपको इस हालत में देखना मेरे लिए सख्त मुश्किल है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और फरमाया, ए प्यारे फर्जंद, आज के बाद तेरे वालिद पर कोई परेशानी नहीं। ये तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा और तेरी नानी खदीजतुल कुबरा और तेरी माँ फातिमा ज़हरा और जन्नत की हूरें मेरे पास पहुँच गई हैं और मेरे पहुँचने की मुंतज़र हैं। हौसला बुलंद रखो और गिरिया को छोड़ दो। तुम्हारे रोने की वजह से मलाइका की चीखें बुलंद हो रही हैं। चंद लम्हात में ये खबर पूरे कूफा में फैल गई। मर्द और औरतें घरों से निकलकर जामे मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े ताकि अपने इमाम का दीदार कर सके। लोग मस्जिद में आए। उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा अपने वालिद का सर अपनी आगोश में रखे हुए थे और खून साफ कर रहे थे। फिर आपने जोर से पट्टी बांधी, मगर जख्म इतना गहरा था कि खून रुकने में नहीं आ रहा था और आपके चेहरे की जर्दी और सफेदी बढ़ रही थी और आप आसमान की तरफ देख रहे थे और आपकी जुबान पर तस्बीह खुदा जारी थी। आपका सर इमाम हसन की आगोश में था। आप पर गशी तारी हो गई। इमाम हसन ये मंजर देख रहे थे और जोर जोर से रोने लगे और मौला के चेहरे और मुकामात सुजूद को बोसे देने लगे। इमाम हसन के गरम आंसू अमीर अल मोमिनीन के चेहरे पर पड़े तो आपने आंखें खोल दी और इमाम हसन को रोते हुए पाया। फर्जंद को फरमाया, आज तो तुम मुझ पर रो रहे हो जबकि कल तुझे मजलूमियत के आलम में जहर से शहीद किया जाएगा और तेरे भाई हुसैन को तलवार से शहीद किया जाएगा और यूं तुम अपने नाना और वालदा से मुलाकात करोगे। इमाम हसन ने अर्ज किया, बाबा जान हमें बताएं कि आपको किसने जख्मी किया है। आपने फरमाया, फर्जंद यहूदिया अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने जख्मी किया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज किया, बाबा जान वो किस रास्ते से भागा। आपने इशारा फरमाया, तुम्हें उसको तलाश करने की जरूरत नहीं, वो अभी इसी दरवाजे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। आपने बाबे कंधा की तरफ इशारा किया। आपके बदन में जहर असर कर रही थी। आप एक लम्हा के लिए बेहोश हो गए। लोग कातिल का इंतजार करते थे। चंद लम्हात के बाद शोर सुनाई दिया। मालूम हुआ कि दुश्मनी खुदा गिरफ्तार होकर मस्जिद में लाया जा रहा है। लोगों ने उस पर हमला किया और अपने दांतों से लईन को काटने लगे और उससे कहते थे, ऐ दुश्मनी खुदा, तूने ये क्या काम किया है। तूने उम्मत मोहम्मद को तबाह किया और कायनात के अफजल तरीन शख्स को कत्ल किया है। वो लईन खामोश था। उसके आगे एक शख्स था जिसके हाथ में बेनियाम तलवार थी, जिसका नाम हुज़ैफा नखी था। वो कह रहा था कि लोगों हट जाओ, ये इमाम का कातिल है, मैं इसको इमाम के सामने पेश करना चाहता हूँ। उस लईन की आंखें दहशत से उठी हुई थी और उसके चेहरे पर एक गुर्बत के निशान थे, जिसकी वजह से उसके चेहरे की हड्डी नुमाया हो चुकी थी और उसकी दाढ़ी और सीने पर खून बह रहा था।
उस लईन को इमाम के सामने लाया गया। इमाम हसन ने उससे फरमाया, तुझ पर हलाकत हो ऐ लईन, ऐ दुश्मन खुदा, तुझ पर लानत हो, तूने अमीर अल मोमिन को कत्ल किया है और पूरी उम्मत इस्लामिया को तूने यतीम बनाया है। अमीर अल मोमिन ने तो तुझे पनाह दी थी और दूसरों पर तुझे फजीलत दी थी, क्या उस नेकी का बदला यही है जो तूने हमें दिया है? वो लईन खामोश रहा, उसके आंसू बहते रहे। फिर कुछ लम्हात के बाद उसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से कहा, आए अबू मोहम्मद, क्या आप किसी दोज़ख जाने वाले को छुड़ा सकते हो? उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम हुज़ैफा की तरह मुतवज्जा हुआ। आपने फरमाया, तुमने उससे कैसे गिरफ्तार किया? हुज़ैफा ने जवाब दिया, मेरी बीवी ने मुझे बेदार किया और कहा कि उठो, तेरा इमाम अली इब्न अबी तालिब शहीद हो गया। मैं घबरा कर उठा और कहा कि तेरे मुंह में खाक, तू ये क्या कह रही है? चाचा, मैं घर से तलवार बेनियाम करके निकला और जब मैं रास्ते के दरमियान में आया तो उस वक्त ये दुश्मन खुदा दौड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने तलवार बुलंद की कि उस पर हमला करूं। ये एक तरफ हो गया, हवा का झोंका आया, उसकी चादर हटी तो मैंने देखा कि उसने चमकदार तलवार छुपाई हुई है। मैंने कहा कि तूने बेनियाम तलवार क्यों उठा रखी है? मेरा ख्याल है कि तू अमीर अल मोमिन का कातिल है। ये इनकार करना चाहता था, लेकिन खुदा ने उसकी जुबान पर सच जाहिर कर दिया और उसने कहा, हाँ, मैंने कत्ल किया है। मैंने तलवार बुलंद की और इधर उसने भी तलवार बुलंद की, लेकिन उससे कबल के वो मुझ पर हमला करता, मैंने उसकी पिंडली पर तलवार मारी और उससे तलवार छीनने की कोशिश की कि इतने में मोहल्लेदार बाहर आए और उन्होंने मेरी मदद की। फिर मैं उसी रस्सी में जकड़ कर यहाँ ले आया। मौला, अब मुजरिम आपके सामने है, जो जी में आए उससे वही सुलूक करे। इमाम हसन ने अर्ज किया, बाबा जान, आपका दुश्मन इब्ने मुलजिम आपके सामने हाजिर है। आपने आंखें खोली और उसे देखा, वो रस्सियों में जकड़ा हुआ था और उसकी तलवार उसकी गर्दन में लटक रही थी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने बड़ी शफकत से फरमाया, ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा जुल्म किया है और तूने अमर अजीम का मुर्तकब हुआ है। क्या मैं तेरा बुरा इमाम था कि तूने मुझे उसका ये बदला दिया? क्या मैं तुझ पर शफकत नहीं करता था? क्या मैंने तुझे औरों पर बरतरी नहीं दी थी? और क्या मैंने तुझ पर एहसान नहीं किए थे? क्या मैंने तेरे वजीफा में इजाफा नहीं किया था? मुझे तेरे बारे में पहले से इत्तला नहीं मिली थी, मगर उसके बावजूद मैंने तुझे कैद किया था और नहीं सजा जारी की थी। मैं जानता था कि तू ही मेरा कातिल है, लेकिन उसके बावजूद तुझ पर शकावत गालिब आ गई और तूने मुझे कत्ल किया है। इब्ने मुलजिम की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, क्या आप दोज़ख जाने वाले को दोज़ख से बचा सकते हैं? आपने फरमाया, तूने सच कहा है। फिर मौला अली ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, अपने कैदी से नरमी करना, उस पर रहम करना और शफकत करना। देखो, उसकी आंखें शिद्दत खौफ से ऊपर को उठी हुई है और उसका दिल कांप रहा है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बाबा जान, इस जालिम ने आपको कत्ल करने की कोशिश की है और हमें गम में मुब्तला किया है, मगर आप उसके मुतालिक नरमी का हुक्म दे रहे हैं। आपने फरमाया, हाँ मेरे फर्जंद, हमारा घराना मुजरिम पर भी रहम करता है और रहमत व शफकत हमारे घराने की पुरानी आदत है। आपको मेरे हक का वास्ता जो कुछ आप खुद खाएं उसे भी खिलाएं और जो कुछ खुद पिए उसे भी पिलाएं। इसके पाँव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां मत डालें। अगर मैं इस ज़रब से दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो फिर उसे कसास में कत्ल कर देना और उसे एक ही ज़रब मारना, उसके जिस्म को आग में न जलाना और मरने के बाद उसकी लाश का हुलिया न बिगाड़ना। मैंने तुम्हारे नाना जान से सुना था, वो फरमाते थे कि किसी की लाश के आज़ा न काटो, अगर चाहे वो बावला कुत्ता ही क्यों न हो। अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे माफ करने का हक हासिल है। मैंने उससे जो सलूक करना है उस सलूक से मैं खुद ज्यादा आगाह हूँ। फिर मौला अली ने फरमाया,
मुझे घर ले चलो। मौला अली की औलाद ने आपको चारपाई पर उठाया। उनके साथ लोग गिरिया करते चलने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो रो कर कह रहे थे, बाबा जान आपके बाद हमारे लिए कौन है? वफात पैगंबर के बाद सबसे बड़ी मुसीबत आपकी है। आपकी खातिर मैंने रोना सीखा है। रसूलुल्लाह की बेटियां इमाम अलैहिस्सलाम के बिस्तर के गिर्द जमा हो गई और वो शेर खुदा को इस हालत में देख रही थी। हजरत ज़ैनब कुबरा और उनकी बहनों ने बैन करके कहा, बाबा जान अब छोटे बच्चों का मुहाफिज कौन होगा? बाबा जान हमारा गम तवील है और हमारे आंसू कभी नहीं रुकेंगे। आपके घर के बाहर लोगों के गिरिया बुका की आवाजें बुलंद हो रही थी। लोगों का गिरिया सुनकर मौला अली अलैहिस्सलाम की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर आपकी औलाद ने आपके इलाज के लिए कूफा के नामवर हकीम बुलाया और उनमें उस दौर मशहूर हकीम असीर बिन उमरो भी शामिल थे। उसने मौला के सर के जख्म को बड़ी गहरी नज़र से देखा। उन्हें आपसे मायूसी हुई और उन्होंने कहा, अमीर अल मोमिनीन आपने जो वसीयतें करनी हैं वो कर ले। दुश्मन खुदा की तलवार की ज़रब बहुत बड़ी गहरी है। मोहम्मद बिन हनफिया का बयान है कि जब 21 माह रमज़ान की रात हुई तो मेरे वालिद ने अपनी तमाम औलाद और खानदान के अफराद को जमा किया और उनसे अलविदा कहा और फिर फरमाया, खुदा मेरी तरफ से तुम्हारा मुहाफिज हो, वही मुझे काफ़ी है और बेहतरीन कारसाज है। फिर आपने अपनी औलाद में एक एक का नाम लेकर उन्हें खुदा हाफिज कहा। औलाद रो रही थी। इमाम हसन ने पूछा, बाबा जान आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया, बेटा इस वाक़या से एक रात पहले मैं तेरे नाना मुस्तफ़ा को देखा था। मैंने उनसे इस उम्मत की तर्ज अमल की शिकायत की। उन्होंने कहा उन पर बद्दुआ कर। मैंने कहा, परवरदिगार उन्हें मेरे एवज बुरे हुक्म नसीब कर और मुझे उनके बदले अशे रफ़ीक इनायत कर। फिर नबी खुदा ने फरमाया, अल्लाह ने आपकी बद्दुआ कबूल कर ली है और 3 दिन बाद तुझे हमसे मिला देगा। अब 3 दिन गुजर गए हैं। ऐ हसन ऐ हुसैन, मैं तुम दोनों को भलाई की वसीयत करता हूँ। तुम दोनों मुझसे हो और मैं तुमसे हूँ। फिर आप गैर फातिमी औलाद की तरफ मुतवज्जा हुए और उन्हें वसीयत की कि वो औलाद फातिमा हसन और हुसैन की मुखालफत न करना। उसके बाद आपने फरमाया, खुदा तुम्हें सब्र जमील अता फरमाए। मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूँ और मैं आज रात तुमसे जुदा हो जाऊंगा और अपने हबीब मुस्तफ़ा से मिलने वाला हूँ। ऐ हसन, जब मेरी वफात हो जाए तो तुम मुझे गुस्ल देना और कफन पहनाना और नाना के बचे हुए काफूर से मुझे हुनूत करना। वो जन्नत का काफूर है जिसे जिब्रील अमीन लेकर आए थे। फिर मुझे चारपाई पर लेटा देना और चारपाई का अगला हिस्सा न पकड़ना, उसका पिछला हिस्सा पकड़ना। जहाँ पहुंचकर अगला हिस्सा रुक जाए वहाँ चारपाई को रख देना। फिर हसन आगे बढ़कर मेरी नमाज जनाजा पढ़ना और जनाजे में 7 तकबीरात कहना और ये भी जान ले कि तू 7 तकबीर नमाज जनाजा मेरे अलावा और किसी के लिए जायज नहीं है। अलबत्ता एक और शख्स पर भी 7 तकबीरें पढ़ी जाएंगी। वो आखिरी जमाने में खुरूज करेगा, उसका नाम कायम महदी होगा और तेरे भाई हुसैन के नस्ल से होगा। फिर जब नमाज पढ़कर फारिग हो जाओ तो चारपाई को उसके मकाम से हटा देना और उस जगह की मिट्टी हटा देना। वहाँ तुम्हें तैयार कब्र मिलेगी, मुझे उसमें लिटा देना। तो फिर मेरे वजूद को कब्र में तलाश करना तो मुझे वहाँ नहीं पाओगे। मैं तेरे नाना से मुल्हक हो जाऊंगा।